Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. How are you guys? I hope you are all set to crack OLEX. So this is going to be a very exciting session. In fact, it's a practice session. तो आप क्या करो, साथ में अपना पेंसिल और पेपर रेडी रखो और आप पैरेलली क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, राइट? सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू इन द क्लास. तो आपकी एक होलसम प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड वी हैव इंश्योर्ड ये क्वेश्चंस कम फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ताकि आपको बहुत मजा आए, राइट? सो क्वेश्चंस आर फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लगने वाला है. सो बिफोर यू बिगिन विद द सेशन, एक पेंसिल और पेपर रख लो ताकि पैरेलली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज जूही नरूला. सो मल्टीपल टॉपिक्स हम बेसिकली कवर करेंगे, राइट? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद होमोनिम्स, राइट? तो ये इसका डायरेक्शन है. आपको बेसिकली मैं एक सेंटेंस दूंगी और उस सेंटेंस में आपके पास दो ऑप्शंस हैं. तो दीज आर होमोनिम्स, राइट? होमोनिम्स क्या होते हैं? जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, राइट? सो व्हाट डू वी मीन बाय होमोनिम्स? होमोनिम्स आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, राइट? सो हम आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? होमोनिम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो होमो इज सेम एंड निम स्टैंड्स फॉर नेम. तो एट टाइम्स, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक को टेस्ट नहीं कर रहे होते, ये आपकी अवेयरनेस ऑफ द वर्ड को भी टेस्ट कर रहे होते हैं. तो कभी हम जल्दबाजी में है तो क्या होता है कि हम देख ही नहीं पाते कि देयर इज सम वेरिएशन और देयर इज सम डिफरेंस, राइट? सो दैट्स व्हाट दीज क्वेश्चंस आर. जहां भी टाइम बेस्ड टेस्ट आएंगे, जो भी ओलेट्स टाइम ड्रिवन होते हैं, उस केस में क्या होता है कि यू गेट टू सी मोर ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. टॉम्स हाउस इज डैश far from his house, right? So you have very and you have very. So what are you going to pick here? Quickly take 30 seconds and solve this question. So we are talking about the distance here. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम distance की बात कर रहे हैं, isn't it? Right? So very will be the right one. This very means differ. ठीक है? So there are a variety of choices. The choice might vary depending on the taste of the individual. So that's how you use it, right? चलिए, let's see the next question, please. Again, the homonym one. So you have to pick the right choice for the blank. So we are going to keep the time exactly as you should spend in your exam. So close to 20 to 30 seconds on such questions. Right? So the store is having a big sale. So this will be the right word, right? So जब discounts मिलते हैं, so you call it sale. And ये वाला sale is like sailing in the sea, right? Sailing in the sea, movement in the sea, right? So what would be the correct answer? The correct answer is going to be B in this case. Let's move to the next question. Please see this. Choose the right blank. He'll be here in an hour. So we are wanting a time period, right? So time period is by hour, right? So R to belongingness के लिए होता है. This is our house, right? So R is basically used to show belongingness or possession. चलिए, let's come to the next question, please. You can dash an application to the concerned authority. So basically we are wanting an action verb. So you have to actually write it. This right means correct, right? So it's a simple one. A will be the right answer. Let's come to the next question, please. Did you dash the sound? Did you hear the sound? So here this is listening, right? So this is, did you listen to the sound? So A will be the right answer. Here is referring to the place. So I live here, right? That's how you are going to use it. Got that? Let's come to the next question, please. Let's see this. These questions are easy if you just be familiar and slightly attentive. Otherwise, these are free marks. So pay attention and you'll be able to sail through. What you are going to dash for the annual function. So where, right? Pehnoge kya? So where will be the right word? Where is a question, right? Where do you come from? Right? So where, this will be the right answer. Let's come to the next one. Let's see this. The apartment has a large hall, right? So hall refers to a place.
So in an apartment there will be an area, right, which is large. So you call it hall. और ये वाला hall क्या होता है? I'm sure आपने कहीं तो Instagram pages पे या कहीं तो reels में देखा होगा मेकअप हॉल. सो जहाँ पे इन्फ्लुएंसर आपको अलग अलग तरीके के जो मेकअप प्रोडक्ट्स उसने किसी सेल में लिए होते हैं, नायका की सेल में, वो दिखा रही होती है, या वो कहती है ज़ारा हॉल, तो वो ज़ारा ब्रांड से जो भी कपड़े लाई होती है वो दिखा देती है, राइट? So that's how it is used. For this sentence, hall A will be the right choice. Okay. Let's come to the next question, please. So are these there? So you're looking for whose books, right? So there, like I told you, there is basically used for belongingness. ठीक है, या possession के लिए, जैसा भी आप बोलना चाहें. And there refers to a place. So when I say I live there, so it's basically a demonstrative. क्या बोलते हैं इसको? Demonstrative, जो point out करने के लिए हमारी मदद करता है, right? So it's a demonstrative. So the correct answer will be B. I live there. These are their books, उनकी books, right? So this is उनकी. चलिए, now let's come to the next word. Let's see this. They cannot perform the dash without their parents. So these rights, तो ये तो तुम्हारे अधिकार हो गए, right? So these rights are अधिकार, और ये वाले rights rituals होते हैं, right? So you cannot perform the rites. So the rituals cannot be performed. So अधिकार is not making sense here, right? चलिए, let's move to the next question, please. So here breaks through, that will be the right word. Through तो फेंकना होता है, right? फेंकना. She threw the ball, right? So how will you use it? She threw the ball. फेंकना, ठीक है. थ्रो का पास्ट है, थ्रो का पास्ट टेंस है. और थ्रू ब्रेक थ्रू था, राइट? सो यू आर फाइंडिंग अ वे. सो ब्रेक थ्रू मीन्स यू फाइंड अ वे. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेट. तो अब आपने क्या किया, हमने होमोनिम्स के क्वेश्चंस कर लिए, गॉट द फ्लेवर, राइट? नाउ लेट्स डू सम सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस. सो मिक्स बैग क्वेश्चंस हैं. अब जैसे आप डायरेक्शन पढ़ रहे हो, जब भी आप क्वेश्चन करो ना, डायरेक्शन पढ़ना बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन मिस कर गए ना, तो हम एट टाइम्स फ्लो में कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें एक्चुअली करनी नहीं चाहिए, और मे बी हम रिलैक्स होते तो नहीं करते. careless mistakes or pressure mistakes or mistakes that you do when you're too stressed or worried or the clock is ticking. तो ये तो सब होगा ही. तो अब आप प्रेशर तो बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते, एग्जाम है तो ऑफ कोर्स यू विल फील सम हीट. सो द सजेशन इज दैट you have certain ways and strategies that you are going to always follow. Like you are going to spend some time ऑन रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. ये मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कई बार क्वेश्चन ही मिस कर दिया तो आप आता हुआ आंसर भी गलत कराते हैं, राइट? चलिए, तो लेट्स सी द इंस्ट्रक्शंस. लेट्स सी व्हाट आर द डायरेक्शंस इन दिस क्वेश्चन. सो अपकमिंग क्वेश्चंस के लिए अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज मेड बोल्ड, और फिर ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हैं. Below are given alternatives to the bold part at A, B, C, D, which may improve the sentence. तो आपको क्या करना है? You have to choose the correct alternative, right? अगर आपको लगता है कि कोई चॉइस करेक्ट मतलब आपको सही करने की ज़रूरत नहीं है, तो इन दैट केस यू कुड पिक ई ऑल्सो एज योर आंसर. आई मीन नो करेक्शन वाला आप चॉइस भी पिक कर सकते हो. Researchers have developed a process to using magnetic, though it is in bold, पर फिर भी अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो I will underline this. तो आपको देखना है कि ये हमारे पास जो 4 चॉइस हैं, इनमें कौन सी चॉइस ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगी. अगर आपको लगता है कि चॉइस ए करेक्ट है तो ए को पिक करिए, बी लगता है तो बी को पिक करिए, सी लगता है तो सी को पिक करिए, डी लगता है तो डी को पिक करिए. कई बार एक चॉइस में नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी मेंशन्ड होता है. दैट मीन्स एज इट इज हाउ द स्टेटमेंट इज, दैट वर्क्स फाइन. So researchers have developed a process to using. So basically you have developed a process, right? So you basically need an infinitive here. Infinitive क्या होता है? Verb to plus verb का first form. Like जैसे मैं आपको sentence दूँ, I would like to play the game,
राइट। तो इस केस में जो टू प्ले है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव है, राइट। तो हमें यहाँ पे इस सेंटेंस में यूसेज किसकी चाहिए, इन्फिनेटिव की चाहिए। सो वी दे हैव डेवलप्ड अ प्रोसेस टू यूज, राइट। सो यूजिंग विल बी इनकरेक्ट, तो यानी कि एक तो ये चॉइस एलिमिनेट हो गई। फॉर यूजिंग, टू के साथ यू यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप उसको इन्फिनेटिव कहते हो, राइट। हैव रिटन हियर। सो फॉर यूजिंग, टू यूजिंग नहीं मैच करेगा, टू बी यूज्ड इज नॉट द राइट यूसेज, राइट। तो बचा क्या, टू यूज मैग्नेटिक्स, right? So the correct answer to this question will be choice B. Now let's try the next question. Same directions, right? Part of the sentence is underlined, right? You can see this is underlined. मैंने underline भी कर दिया, वैसे bold में है in case you are you're not able to gauge that. So you can see which choice fits in well. So Nala Pakkam is a term which originated from King Nala's proficiency in cooking. Proficiency matlab you are good at it, right? Proficiency is, that means you are skilled at it. Chalo. So now whenever we say origin, you say originated from, right? ये standard usage होता है. तो origin from, ये अब standard usage है. So which originated from is the right usage. Originated ऑफ ये सारा इनअप्रोप्रिएट है। तो जब भी आप ओरिजिनेटेड वर्ब यूज करेंगे, आप उसके बाद जो प्रेपोजिशन प्लेस करते हो वो फ्रॉम करते हो, ठीक है। वेयर इज द ओरिजिन कमिंग फ्रॉम, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। मे बी आप जहाँ पे भी अपने नोट्स बनाते हो लिख लो, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इज द राइट यूसेज, ओके। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डायरेक्शंस। सो हियर इट इज, डिस्टर्ब्ड आर कॉन्शियस। आपको चेक करना है, अगर आपको लगता है अंडरलाइन पोर्शन सही है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड पिक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो करेक्शन की ज़रूरत है, तो देखिए कौन सी ऐसी आंसर चॉइस है जो राइट यूसेज ऑफर करती है। सो बेसिकली ये भी जो एक क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं आपको कहाँ चेक कर रहा है, आपको चेक कर रहा है कि क्या आपको मीनिंग ऑफ द वर्ड पता है कॉन्शियस का। सो दिस कॉन्शियस इज अवेयर, ठीक है। कॉन्शियस होना, यू शुड बी कॉन्शियस ऑफ योर राइट, सो यू शुड बी अवेयर। और ये कॉन्शियस होती है, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़, राइट। सो देर इज एन इनर वॉइस दैट टेल्स यू, हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। सो इनर वॉइस विच टेल्स यू व्हाट इज राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, राइट। जैसे आप इसको ऐसे देखो कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, एग्जाम में चीट कर रहे हो, राइट। तो आपके मन में आता है नहीं यार, नहीं यार। सो दैट्स योर अंतरात्मा की आवाज़, राइट। सो दैट्स वेयर यू शुड पे अटेंशन। सो जब आपको अंदर से आवाज़ आती है नहीं गलत काम नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए, राइट। चलो, इनफ ऑफ ज्ञान। सो कमिंग टू द क्वेश्चन। सो पॉवर्टी इज़ टू मच एंड प्रेजेंस अक्रॉस द वास्ट स्ट्रेचेस, मतलब हमारी कंट्री में बहुत फैली हुई है, तो ये हमारी अंदर की आवाज़ को परेशान करती है। तो कॉन्शियस तो वर्ड नहीं हो सकता, राइट। तो यानी कि हम क्या करेंगे, कॉन्शियस वाली चॉइस एलिमिनेट कर देंगे। तो यानी कि सी भी एलिमिनेट हो गया और ई भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ई रखते तो कॉन्शियस आता, तो अवेयरनेस तो नहीं। तो डिस्टर्बिंग नॉट, इट्स नॉट डिस्टर्बिंग आर अवेयरनेस, इट्स डिस्टर्बिंग व्हाट, डिस्टर्बिंग आर इनर सेल्फ, राइट। सो सी और डी गोज आउट। नाउ वी हैव थ्री चॉइसेस, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी विल पे अटेंशन टू दिस सब्जेक्ट, पॉवर्टी इज टू मच, राइट। Poverty is too much with us and its presence across vast stretches of our country. So poverty is singular, तो जो हमें verb चाहिए ना वो भी singular चाहिए, so it should be a singular verb. अब singular verb कहाँ पे नहीं है, अब हमारे पास singular verb B में नहीं है, disturb है, right। तो poverty is singular, तो verb जाएगा वो भी singular जाएगा, तो हमने B भी eliminate कर दिया, ठीक है। नाउ यू टेक द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। तो जब भी आप टेंसेस के क्वेश्चंस देखते हैं, गो थ्रू द क्लू एंड टेंस विच इज देयर इन द नॉन अंडरलाइन पोर्शन। तो नॉन अंडरलाइन पोर्शन में आप देखेंगे पॉवर्टी इज प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, सो वी शुड पिक एन आंसर चॉइस विच वर्क्स इन प्रेजेंट टेंस, राइट। बहुत अच्छा सवाल था ये, क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स चेक हुए। देखो, एक उसने आपको वोकैबुलरी पे चेक किया कि स्टूडेंट्स को क्या कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस में डिफरेंस पता है, कॉन्शियस में डिफरेंस पता है,
राइट। तो उसके बेसिस पे आपने एलिमिनेशन करा। उसके बाद इसने चेक करा कि आप पॉवर्टी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो उसने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे आपको चेक किया। फिर उसने टेंस दे के आपको चेक किया कि स्टूडेंट्स को क्या पता है कि नॉन अंडरलाइन पोर्शन मतलब हाफ द सेंटेंस कैन नॉट रन इन टेंस एंड प्रेजेंट टेंस एंड हाफ ऑफ द सेंटेंस कैन नॉट रन इन पास्ट टेंस। तो फिर उसने आपको कौन से पॉइंट पे चेक किया, फिर उसने आपको चेक किया इन टर्म्स ऑफ टेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, वोकैबुलरी। सो यू कैन सी अगर कोई क्वेश्चन अच्छा क्रिएट करना है, वैरायटी लानी, तो मल्टीपल डोमेन्स में आपको चेक किया जा सकता है। और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल 5 चॉइसेस दे के भी बढ़ाया गया। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इजंट इट। चलिए, सो सी दिस इज द अंडरलाइन पोर्शन, ये बोल्ड वाला पोर्शन है जो मैंने अंडरलाइन कर दिया। आप अच्छे से ट्राई करो एंड देन वी विल डिस्कस। चलिए, so let's see this. For decade company that makes soaps, lotions and perfumes have relied. तो जो नॉन अंडरलाइन पोर्शन है उसको आप ग्रामेटिकली करेक्ट कंसिडर करते हैं। तो हैव इज व्हाट, हैव इज अ प्लूरल वर्ब। तो जो हमें सब्जेक्ट चाहिए ना वो भी हमें कैसा चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, राइट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर है, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल है। सो इन दिस केस यहाँ पे कंपनी तो नहीं आ सकता, राइट। क्यों? क्योंकि कंपनी सिंगुलर है, वी नीड अ प्लूरल सब्जेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो पहला जो एस्पेक्ट चेक हुआ वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का चेक हुआ, तो हम कंपनी वाली चॉइसेस एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि हमने ए भी एलिमिनेट कर दिया, हमने सी भी एलिमिनेट कर दिया, और करेक्शन की तो जरूरत है ही, सो डी ऑल्सो गोज आउट। तो बचा क्या, बी, डेकेड्स। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम फ्रेम, सो इट्स नॉट जस्ट अ डेकेड। तो अगर यहाँ पे डेकेड करेक्ट होता तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देता वो फॉर अ डेकेड कंपनीज आर डूइंग इट। बट इफ देर इज नॉट अ सिंगल ए, देन इन दैट केस यू नीड टू टॉक अबाउट, और यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल डेकेड्स। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर चॉइस, बी, right? So B is the correct answer for this question. Let's see the next question, please try this. So the underlined portion is and, or the bold part, कलर थोड़ा सिमेट्रिकल है तो मे बी अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, दो इट इज इन बोल्ड पर कई बार हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, so that is the reason I am just underlining it so that it is more convenient for you to solve the question. चलिए, so let's see this. As far as I know them, they all are atheist and they observe fast during the Navratri. तो अगर कोई atheist है, that means not believing in God, right? और वो फास्ट ऑब्जर्व कर रहा है, तो एंड का यूसेज इनकरेक्ट है। ये ट्रांजिशन वर्ड्स है। अगर आप मेरे क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हो तो ट्रांजिशन वर्ड्स को मैं बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कस करती हूँ, राइट। सो एंड क्या करता है, डिस्कशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाता है। सो इफ आई से आई एम वर्किंग हार्ड, और फिर मैंने आपको कहा कि एंड के बाद सेंटेंस को कंप्लीट करो। सो यू विल से आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। बट इफ आई से आई एम वर्किंग हार्ड बट it is not sure whether I'll be appearing for the exam. So and और but ने क्या किया, यहाँ तक तो सेंटेंसेस दोनों आइडेंटिकल थे, बट जो ट्रीटमेंट हुआ लेटर हाफ में वो डिपेंडेंट था ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन वर्ड यू यूज। तो उससे आपको पता चलता है एंड, बट, और, नॉर, देयरफॉर, दीज, फर्दर, मोर, मोरओवर, इनसे आपको पता चलता है कि डिस्कशन कैसे प्रोसीड करेगा, राइट। सो फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या रहेगा, इसलिए बहुत केयरफुल रहिए। सो दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। अगर वो एथीस्ट है और नवरात्रे का फास्ट रख रहे हैं तो ये सरप्राइज एलिमेंट आना चाहिए। वी कांट हैव द सेम डायरेक्शन ट्रांजिशन वर्ड, तो बिकॉज हेंस तो कंक्लूजन के लिए ये एक रीजन दे रहा है विच इज नॉट लॉजिकल, so is again a conclusion which is not making sense. So yet, so that is the right usage. जब आप इसको रिप्लेस करके देखो कि दो वो एथीस्ट हैं, उनको एज फार एज द ऑथर नोज कि एथीस्ट है, पर वो नवरात्राज में फास्ट रखता है, सो दैट्स डूइंग जस्टिस, राइट। सो व्हाट इज द राइट यूसेज, सी। तो प्राइमरीली ट्रांजिशंस आपको समझ में आता है कि एंड, बट, और, नॉर, येट, बिकॉज, हाउ डज दीज वर्ड्स वर्क। चलो, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी दिस। Whenever you enter someone else's living room, good manners suggest that you should take out your shoes. तो राइट यूसेज क्या होता है, टेक ऑफ, राइट। तो यहाँ पे वर्ब्स
अपने बाद एक सेट प्रेपोजिशन लेते हैं और एक फिक्स्ड मीनिंग को कन्वे करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। तो ये एक स्टैंडर्ड यूसेज है, आप इसको टैम्पर नहीं कर सकते, यू कांट चेंज द प्रेपोजिशंस। जैसे मेकअप है, ब्रेकअप है, राइट, तो इनके सर्टन मीनिंग्स हैं, आप इसको टैम्पर नहीं कर सकते। मतलब कोई, मैं पार्लर में जाके नहीं कह सकती मेरा मेक डाउन कर दो, राइट, और मेक ऑफ कर दो, और मेक बैक कर दो, यू कांट डू दैट। सो सिमिलरली व्हेन वी से दैट हमें शूज़ को रिमूव, किसी भी चीज़ को रिमूव करना है, उसे टेक ऑफ योर शूज़, राइट। So B will be the right choice. So you should be aware of such expressions, right? That's what the question is testing. Now let's come to this question. So this is the underline portion, the bold part. You can check accordingly. चलिए, so there is nothing quite depressing then. तो देन आ गया, यानी कि आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो जब कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको एक कंपैरेटिव टर्म चाहिए, राइट। सो शी इज टॉलर देन, राइट, तो आपने टॉलर के लिए कंपैरिजन किया ना, शी इज टॉलर देन। सो क्वाइट डिप्रेसिंग की जगह इफ यू हैव a word that you offers comparison, that will be the right choice. So कहाँ पे comparative term offer होती है, C में. So there is nothing more depressing than, right? So there is nothing as depressing than, doesn't make sense. There is nothing this depressing than, again we need a comparative term, and ये तो दोनों same ही हो गए. So what will be the right answer for this question? C. Let's come to the next question, please. Let's try this. देखिए कौन सा ऑप्शन फिट्स इन द बेस्ट, जो बिल्कुल करेक्ट हो ग्रामर के एस्पेक्ट से। ऑल द मैचेस ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी ब्रॉडकास्टेड। तो पहले तो ये देखिए कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट विल बी द राइट फॉर्म, जो फ्यूचर टेंस होता है विल plus be plus verb का first form, right? So that's how the tense works. So the right tense will be what? D, will be broadcast. So what is the possibility वाला option? D. So that's a simple awareness of the tenses that you need to know. So verb form पता है तो भी question आसानी से आप निकाल लोगे. Let's come to the next question. Let's try this. ये अगर आपने ओलेट्स की सीरीज को फॉलो किया है तो हमने एक पैरेलल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किया था, उसी से ड्रिवन क्वेश्चन है, राइट। सो वी डिड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। अगर नहीं देखा तो आप जाके प्लीज प्लेलिस्ट में ग्रामर वाली वीडियोस देख लेना, एंड दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली कमिंग फ्रॉम द सिमिलर कॉन्सेप्ट विच वी हैव ऑलरेडी डन इन डिटेल। तो बेसिकली पैरेलल स्ट्रक्चर कहता है कि जो भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन करते हैं, विच इज एंड, बट, और, नॉर, राइट, दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे आप इसमें और देख रहे हो तो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। जैसे ही डिड नॉट मेंशन हाउ ओल्ड ही वाज और व्हाट हिज जेंडर वॉज। तो आप देखो ये नॉन अंडरलाइन पोर्शन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ ओल्ड ही वॉज। तो पैरेलल स्ट्रक्चर कहता है कि ग्रामेटिकल फंक्शन और स्ट्रक्चर को सेम रखो, तभी नाम है पैरेलल कंस्ट्रक्शन, पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेललिज्म। तो सिमिलर स्टाइल क्या है, हाउ ओल्ड ही वॉज, what his gender was, right? So what will be the right usage? C. So only C में parallelism है, exactly matching the list. So that's something that we need to keep in mind. तो and, but, or, nor, या तो elements list से combined हो जिसमें either or, neither nor, not only but also, right, या फिर both एंड, इनसे ये इनको पेयर्ड कंजंक्शंस भी कहते हैं, यानी ये कंजंक्शंस गो हैंड इन हैंड, और एंड, बट, और, नॉर। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप दीज वर्ड्स इन माइंड। और अगर आपको इन एलिमेंट से कोई लिस्ट कंबाइन होती हुई दिखती है तो इंश्योर करिए कि ग्रामेटिकल फंक्शन सेम है, राइट। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे पास। लेट्स प्रोसीड फर्दर, राइट। अब हमें सिंपली एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चन करने, तो आप देखो इसमें इस वर्ड का आपको राइट एंटोनिम पिक करना है। सो यू सी ओलेट्स में ना लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो दैट इज रियली रियली क्रूशल।
बिजार इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज, ठीक है, तो कुछ बहुत ही अजीब सा होता है ना, स्ट्रेंज, उसके लिए आप बिजार टर्म को यूज करते हो, तो तुमको इसका ऑपोजिट फाइंड आउट करना है। तो एबरेंट तो डिस्टॉर्टेड होगा, राइट। सरिल समथिंग विच इज यू नो वेरी फेरी टेल मोमेंट, कि ये तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही, इज अ सरल मोमेंट फॉर मी। लैविश इज जहाँ पे बहुत शानदार, ठीक है। सो लैविश पार्टी थी, जैसे आपने अंबानीज की पार्टी देखी होगी, तो उनके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, उनकी पार्टीज के लिए, प्री वेडिंग सेरेमनीज, फेस्टिविटीज, दे वर लैविश, राइट। तो ये तीन वर्ड्स तो फिट इन ही नहीं होते, रियलिस्टिक, राइट। सो समथिंग विच इज स्ट्रेंज, bizarre, something which is difficult to understand, comprehend. So opposite of it will be something which is realistic, right? Simple. Chalo, let's move to the next question. Let's try this. Synonym of balmy. क्वेश्चन देखते जाएं, कई बार क्या होता है हम एंटोनिम्स कर लेते हैं, 4-5वां क्वेश्चन सिनोनिम का आ जाता है और हम उसी को पिक कराते हैं। सो यू सी व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग। सो बामी इज समथिंग विच इज जेंटल। बामी क्या होता है? समथिंग विच इज जेंटल। जैसे वेदर बामी है, तो जैसे कूल ब्रीज ब्लोइंग, जैसे अभी जब आप ठंड से गर्मी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हो एट दिस टाइम, राइट, एग्जैक्टली अभी जो मौसम है, स्पेशली पीपल हु आर देयर इन नॉर्थ इंडिया, उनको ये ट्रांजिशन बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ठंड भी नहीं है विच इज़ अकड़ू ठंड, और गर्मी भी नहीं है, सो इट्स अ माइल्ड ब्रीज इज देयर, तो उसके लिए हम बोलते हैं दिस इज अ बामी वेदर, राइट। सो फियर्स तो स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। नाइव इज फुलिश, ग्रफ अगेन इज नॉट मेकिंग सेंस, तो द सिनोनिम वुड बी नॉन अब्रेसिव, राइट, विच इज अगेन मीन्स सूदिंग, जेंटल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एंटोनिम देखना है कैपेशियस का। सो कैपेशियस इज विच हैज गॉट अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, विच हैज गॉट अ लॉट ऑफ कैपेसिटी। सो कैपेशियस कैपेसिटी से आया, राइट। तो उसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, लिमिटेड है, राइट। सो कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है जी। So what will be the correct answer? A. Let's come to the next question, please. Let's try this. Synonym of embargo. So embargo का मतलब क्या होता है? एक official ban on trade with a particular country. So what is embargo? Official ban on trade with a specific nation, specific country. ठीक है, इसको हम एम्बार्गो बोलते हैं। तो यानी कि रोक लगा देना, राइट। बैन वर्ड आ गया ना, तो दैट समथिंग विच स्टॉप्स। तो डेटरेंट भी वही होता है जो हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जो रोकता है। तो आपको सिनोनिम चाहिए, तो बेस्ट सिनोनिम वुड बी ए इन दिस केस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको सिनोनिम ऑफ फैलेसी चाहिए, राइट। सो ट्राई दिस। So fallacy comes from mistake, something which has got error in it, right? So erroneous, right? So that's erroneousness is where you are making a mistake. एक बड़ी beautiful saying है, to err is human, to forgive is divine, right? I'll just write it for you. To err is human, to forgive is divine. तो अगर आप गलती कर रहे हो, दैट्स एन एक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान गलती करता है, टू फॉरगिव। पर अगर आप माफ कर देते हो, तो यू आर एक डिवाइन एक्ट कर रहे हो, एक नोबल एक्ट कर रहे हो, राइट। एन एक्ट ऑफ गुडनेस इज दैट व्हाट यू आर डूइंग, राइट। चलो, सो नाउ लेट्स सी व्हाट मोर क्वेश्चंस डू वी हैव इन आवर किटी। सो आपको इन क्वेश्चंस का सिनोनिम ढूंढना है, राइट। सो यू हैव टू फाइंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड डिप्लोर। प्लीज ट्राई दिस। So deplore is something that you hate. I deplored how he treated the pet. ठीक है, so deplored is hatred. So word आ जाएगा abhor. Abhor is hatred. ठीक है, I abhor going to my relative's place. Okay, or I abhor eating karela, whatever, right? So abhor is something which you greatly dislike. Now you have to find the synonym for fend. Try this.
So fend is what, where you are trying to support yourself, you're trying to protect yourself, right? अब out of the given options सिर्फ bulwark fits in the best possible way, right? So what we can pick is C as an answer. So what is fend? You're trying to protect yourself, protect, or take care of yourself without any outside help, right? That's what we mean by fend, and the closest option that we can pick is bulwark. चलिए, let's see this. overt का synonym देखिए. So overt is an open perspective, open to view, right? overt का opposite होता है covert. तो opposite क्या हो जाएगा overt का? covert. covert is something which is hidden, छुपा हुआ, right? और overt is something which is open to view. चलिए, now let's come to the next question. Let's try the chicanery. This is where you try to trick somebody, किसी को धोखा देना, बेवकूफ बनाना, right? So that's what we use the word trickery. Grotesque is something which is terrible, something which is terrible. Ephemeral is something which is short-lived. ठीक है? Transitory is where we are talking about a change, right? So what will be the right answer? D. Let's come to the next question. Fecund. So what does that means? You have to find the synonym. So fecund का मतलब होता है highly fertile, उपजाऊ, ठीक है? So the correct barren का मतलब तो जहाँ पे उपज नहीं हो सकती. Again sterile goes for the same reason. Skimpy is very thin, so B will be the right choice. Okay. चलिए, so we've done some more types of questions. तो आप fill in the blank questions करते हैं. Again they are very very important. ये हमने cover भी किया OLETS की classes में, initially sessions में. अगर आपको कोई particular category में दिक्कत आ रही है तो you could basically watch the previous videos. They will be very very helpful to crack any OLET, right? अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट यू नीड टू नो द कॉन्टेक्स्ट, तो सेंटेंस को समझने में भी अच्छा टाइम दो. सेकेंड यू नीड टू नो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, राइट? तो बोथ दीज थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो आप अच्छे से समझो क्वेश्चन को एंड देन वी विल डिस्कस. सो देर आर 5 चॉइसेस. तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन टास्क आपके लिए डिफिकल्ट कर दिया है. 5 चॉइसेस दे दिए एंड दीज आर डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो, so that you get a good exposure, good practice, and you can learn some good words while being in the class, right? तो अच्छे से क्वेश्चन करो. आई एम गिविंग यू गुड टाइम सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस नाइसली. So see this particular question. The situation for the sustenance मतलब survival, continuity of the tigers looked acquisitive मतलब satisfactory. The dash of tigers is surprising. तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो टाइगर्स के सर्वाइवल के लिए सही लगती है. तो सरप्राइजिंग क्या हो रहा है? जब जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हो रहा तभी तो आप सरप्राइज हो गए. व्हाट इज सरप्राइजिंग? यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड दैट हैपेंस. सो दैट मीन्स कि population of tigers is going down, then only the surprise element is there, because the previous part of the sentence is saying कि situation तो सही लग रही है survival के लिए, sustenance के लिए, that is satisfactory, right? So we need to have a negative word, that means the population is going down, right? So that's how you need to gather the meaning. तो regression का मतलब होता है नीचे जाना. ये choice हम consider कर सकते हैं. devoured is to eat greedily, वो फिट नहीं होगा. emulate होता है बेहतर होना, that doesn't also make sense. rejuvenate होता है when you are back to your spirits. जैसे जब हम break लेके आते हैं, holiday के बाद आते हैं तो हम कहते हैं you're regenerated, मतलब we are back to our senses, we are full of energy and vigor, right? So even that's not matching. deviation हो गया distract होना, so even that's not the right match. So regression is going down, then only the word surprising will do justice कि situation तो सही लग रही थी, फिर सरप्राइजिंग क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इज गोइंग डाउन, राइट? आई होप दिस मेक सेंस. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कीप द क्वेश्चंस ऑफ गुड डिफिकल्टी लेवल ताकि आपको मजा आए क्वेश्चंस करने में, राइट? एंड यू लर्न अ लॉट, राइट? इजी तो आई एम श्योर आप कर लोगे. अच्छे से पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट समझो.
सो टेक अ लुक एट दिस. दो, सो ट्रांजिशन वर्ड्स अभी मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, राइट? देखो कितनी जगह आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी. द साइंटिस्ट इन हिज रिसर्च एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ हजार्डियस. हजार्डियस मतलब हार्मफुल एमिशंस. तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशंस मतलब इम्पैक्ट, राइट? सो इम्पैक्ट ऑफ हजार्डियस एमिशंस इन द एनवायरमेंट. दो, तो साइंटिस्ट ने अपने हजार्डियस इम्पैक्ट तो एक्सप्लेन कर दिया, पर सो पे अटेंशन टू दिस, ही डैश टू कंसिडर द अदर फैक्टर्स. मतलब दो आ गया, दैट मीन्स द डिस्कशन विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? दो शी वॉज इंटेलिजेंट बट शी वॉज नॉट कंपैशनेट, राइट? सो दो का जस्टिफिकेशन होगा जब डिस्कशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. दो आई वॉन्टेड टू कम टू द पार्टी, आई फेल सिक, so I could not make it, right? So similarly he was able to find out the hazardous impact on the environment, पर वो fail हो गया to consider the other reasons, right? So the predicted word should be that he failed to consider, right? He did not consider, he could not find out. तो hesitate तो झिझकना होता है, that will not match. Bewildered होता है पगला सा जाना, right? So even that is not matching. Revered is जिसको आप बहुत respect देते हो. Despaired is disappointed. सो फाउंडर्ड इसका मतलब फेल होता है. अब आपके लिए अगर फाउंडर का मतलब एज अ नाउन हो सकता है मार्क जकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, बट एज अ वर्ब दिस मीन्स फेल्ड, राइट? ऐसे ट्रिक करते हैं. मतलब आप तो फाउंडर्ड सोच ही नहीं सकते, राइट? क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत लिमिटेड है. तो जब भी आप वर्ड सीखो ना, ट्राई टू लर्न इफ there are multiple meanings of the words, right? So the correct answer is going to be C. I hope you are really enjoying the questions. So अच्छे से समझ के करो, take them as challenge questions so that you know you really enjoy solving them. चलिए, सो वाइल फिर नेगेटिव ट्रांजिशन है. शैली स्टूड विद हर हस्बैंड इन अ फीबल. फीबल होता है वीक, कमजोर. डिस्प्ले ऑफ कोहेजन. कोहेजन मतलब यूनिटी. वो अपने पति के साथ खड़ी तो थी टू शो सपोर्ट, पर शी वॉज अनेबल टू कंसील हाइड हर वॉट. सो दैट मीन्स सपोर्ट शो कर रही थी, पर एक्चुअली पर she is not supporting. The discussion will go in the opposite direction, है ना? So maybe she is not liking her husband or there is a negative emotion. तो हमें यहाँ पे एक negative word चाहिए. amicable तो lovable होता है. तो जब वो feeble display of cohesion है और vile है और she is unable to hide, तो that means अपनी कोशिश तो कर रही है वो सपोर्ट करने की, पर वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पा रही. तो अगर सपोर्ट करिए तो पॉजिटिव फीलिंग्स को तो छुपाने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव फीलिंग्स को नहीं छुपा पा रही है ना. सॉलिडारिटी इज सपोर्ट, पैरिटी इज इक्वालिटी, एंटागोनिज्म रख सकते हैं. अफेक्शन अगेन इज अ पॉजिटिव वर्ड, वी आर नीडिंग अ नेगेटिव वर्ड हियर, सो डी विल बी द राइट चॉइस. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स ट्राई दिस. अच्छे से पढ़िए, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में है, आपको मजा आएगा करने में. चलिए, सो थियोडरे रोजवेल्ट सेड the best executive is the one who has a sense enough to pick good men to what he wants done, and self restraint. Restraint मतलब control, self control enough to keep from dash with them while they can do it. मतलब एक सही एग्जीक्यूटिव क्या है, जो वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन काम कर सकता है और फिर उसको सेल्फ कंट्रोल रखना है. सेल्फ कंट्रोल क्यों रखना पड़ेगा? सेल्फ कंट्रोल इसलिए रखना पड़ेगा ताकि वो इंटरफियर ना करे, राइट? तो दैट्स द आइडिया. तो मेडलिंग इज इंटरफेयरिंग. बॉल्स्टर होता है इंकरेज करना या सपोर्ट करना, तो उसके लिए तो सेल्फ कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है. वीकन करना कॉन्टेक्स्ट में मैच नहीं करता. सिमिलरली एग्जैस्परेटिंग, डिस्पैरेजिंग इज टू बी लिटिल समबडी, राइट? किसी को नीचा दिखाना. तो अगेन टू बी लिटिल समबडी इज नॉट the right contextual understanding that is conveyed. So A will be the right answer. यानी कि थियोडरे रोजवेल्ट कहते हैं कि सही एग्जीक्यूटिव वो है जो पहले तो चुनाव कर सके सही बंदों का जो काम कर सकते हैं, फिर सेल्फ कंट्रोल रखे और उनके कामों में इंटरफियर ना करे, राइट? अब सपोर्ट करना, वीकन करना, एग्जैस्परेटिंग या फिर अंडरमाइनिंग या डिस्पैरेजिंग, ये तो कॉन्टेक्चुअली सेट ही नहीं बैठता. मतलब किसी को नीचा दिखाना, शर्मिंदा करना के लिए सेल्फ रिस्ट्रेंट क्यों शो करना है, और इन द कॉन्टेक्स्ट सही नहीं बैठता, राइट? सो द करेक्ट वर्ड दैट विल फिट इन विल बी मेडलिंग. मेडलिंग का मतलब इंटरफेयरिंग होता है, ठीक है? सो ए विल बी द राइट आंसर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स ट्राई दिस.
So Christmas came early for children in Sunnyvale, USA after the Hornets owner dash out whooping dash $5 million in charity in November to launch hospitals. तो यानी कि अब क्रिसमस जल्दी आ गया, तो ये नहीं कि कोई अच्छा काम हुआ होगा तभी एक फेस्टिवल जल्दी आ गया। और क्या हो रहा है कि एक हॉर्नेट ओनर ने चैरिटी कर दी, तो यानी कि पैसा दिया, राइट। सो इट्स बेसिकली ओनर गेव, राइट। सो गेव विल बी द राइट वर्ड। श्रेड करना होता है, इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ चॉपिंग, राइट। तो कभी आलू घिस के अगर आपकी मम्मी लच्छे बनाती हैं, लच्छा नमकीन इन यू नो व्हाट दिवाली टाइम और होली टाइम, सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अ चॉपिंग। सो श्रेडिंग तो नहीं होगा, प्रोक्योर ऑक्यूपाई करना होता है, उसमें तो दिया है। तो शेल आउट इज गिव। सेवर होता है एंजॉय करना, स्टॉक इकट्ठा करना। सो द करेक्ट वर्ड विल बी शेल, दैट मीन्स गिव, right? So that's how C will be the right option for this question. Let's try the next one, please. अच्छे से ट्राई करो, राइट। एक्सप्लोर द ऑप्शंस, कॉन्टेक्स्ट समझो। अगर वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे तो मे बी अभी के लिए आप डिक्शनरी की हेल्प ले लो और फोकस करो कि एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट तो आपको समझ में आ रहा है, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव डन सच सेशंस बिफोर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ ऑन द ऑफिशियल चैनल, राइट। जो हमारा चैनल है आप उसके लॉ वाला पे जाओ एंड यू सी द प्लेलिस्ट फॉर ओलेट्स इंग्लिश की, और उसमें आपको इस तरह के राइट फ्रॉम द स्क्रैच क्या कॉन्सेप्ट यूज्ड है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल, राइट। अभी ऑफ कोर्स वी आर डूइंग सम एडवांस क्वेश्चंस फॉर दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के एग्जाम में हमें पता नहीं है कि किस डिफिकल्टी का क्वेश्चन आएगा। तो मैं हर बार ये कहती हूँ कि आप मुश्किल सवाल कर जाइए, क्योंकि अगर एग्जाम में इजी आ गया तो आप कर लेंगे, मुश्किल आया तो आप रेडी हो, तो आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो दिस द फैकल्टी ऑफ लॉ स्कूल इज कंसिस्टेंटली अप्रोचेबल, मतलब आप उनको आसानी से रीच आउट कर सकते हो। एम्पैथेटिक है, मतलब आपके परेशानी को समझती हैं, इंस्पायर करती हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट द इंफॉर्मेशन इम्पार्टेड, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन इम्पार्ट नहीं करती, बट द वे शी ऑल्सो फोकसेज ऑन बिल्डिंग स्टूडेंट्स। तो क्या बिल्ड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या स्किल बिल्ड करेंगी, राइट। तो कोई हमें वर्ड आना चाहिए स्किल, ठीक है। सो ग्रैंडियोर बढ़ाना चढ़ाना होता है, मैग्निफिसेंट। सो व्हाट इज ग्रैंडियोर? मैग्निफिसेंस। तो मैग्निफिसेंस तो नहीं बढ़ाएंगी, स्किल्स बढ़ाएंगी। लोकोना और लैंग्वेडनेस इज बीइंग लेजी, दैट डजंट मैटर, फिट इन। हैगल इज अ नेगेटिव वर्ड, तो एफिकेसी यानी स्किल बढ़ाएंगी। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस सेंटेंस को देखो तुम, सेंटेंस बोलता है द कैपिटल्स एयर क्वालिटी प्लंज टू सीवियर लेवल्स। सीवियर मतलब समथिंग विच इज एक्सट्रीम। ऑन द प्रीवियस डे आफ्टर अ गैप फॉर मोर देन अ मंथ, तो मतलब क्वालिटी बहुत ही खराब हो गई। प्लंज टू सीवियर लेवल्स मतलब एयर क्वालिटी वॉज वर्सनड, सो वर्सन हो गई, सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई, ठीक है। एज डेंजरस पोल्यूटेंट, सो एयर क्वालिटी कब खराब होगी? अगर इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे, तभी तो एयर क्वालिटी फॉल करेगी, राइट। सो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? इंक्रीज शार्पली इन द सिटी, but official said situation was likely to ease in some time, but as if for now the dangerous pollutants in the air, उनकी जो क्वांटिटी अमाउंट है वो बहुत इंक्रीज कर गया, शार्पली भी बोल रहा है, राइट। सो इंक्रीज्ड, सो जेडेड इज बोर्ड, क्वेल्ड पर्टर्ब्ड डिस्टर्ब्ड है, प्रून काट छाट करना होता है, तो स्पाइक्ड, स्पाइक्ड का मतलब इंक्रीज कर गई। सो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द स्कैम होता है घोटाला। स्कैम क्या होता है? घोटाला। डैश द इमेज ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स इवेंचुअल डाउनफॉल। तो पार्टी गिर गई, इवेंचुअल डाउनफॉल मतलब उसकी रेपुटेशन गिर गई, खत्म हो गई। और एंड यानी कि ये वाला आइडिया और ये वाला आइडिया सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो यानी कि अगर पार्टी गिर रही है तो पहले वाला आइडिया भी सिमिलर ही होगा कि भाई जो इमेज है वो भी खराब हो गई है। तो द स्कैम ruined, खराब कर दी इमेज, राइट, ruined, राइट। सो सी व्हाट आर द चॉइसेस दैट वी हैव। एम्यूलरेट हम अभी सीख के आए थे। ड्रेडेड का मतलब होता है स्कैर्ड, एम्यूलरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, राइट। सी वर्ड होता है कट कर देना, तो सी वर्ड नहीं, एम्यूलरेट तो हुई नहीं,
स्कैम से इमेज बेहतर तो नहीं हो सकती, डिमांडेड और ड्रेडेड भी नहीं हो सकता, सलीड, सलीड मतलब धब्बा पड़ गया इमेज पे और जो पार्टी थी वो इवेंचुअली उसका डाउनफॉल आ गया, राइट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ए। लेट्स कम फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So eminent, eminent मतलब respected. Commission is a group, you know, जो officiating group होता है. Has dashed the environmental minister's decision to exempt the construction sector from environmental approval and said it violated, violated मतलब नियम तोड़ना, उल्लंघन करना, India's emission control obligations under the international climate deal. तो अगर उन्होंने ये किया है कि तुमने उल्लंघन किया है किसी नीति का, राइट, तो बेसिकली अगर मैं कहूँ ये चीज तुमने गलत करी है, उल्लंघन किया है नियम कानूनों का, तो बेसिकली कमीशन क्या कर रही है? कमीशन डांट रही है, राइट. सो द कमीशन इज स्कोल्डिंग, सो द कमीशन इज स्कोल्डेड, दैट विल बी द राइट वर्ड, कि इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री का ये डिसीजन कि एग्जेम्प्ट कर दें, यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे कोई भी सिचुएशन जो कंट्रोलिंग एलिमेंट है वो ना रहे, एग्जेम्पशन मिल जाता है ना, जैसे कई बार एज का एग्जेम्पशन होता है, कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं तो कोई एज रिलैक्सेशन मिल गया, तो एग्जेम्पशन इज अ सॉर्ट ऑफ अ रिलैक्सेशन, राइट. तो अब उसने बोला कि रिलैक्सेशन दे दिया कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, तो इसने क्या किया, इंडिया ने जो रूल्स को तोड़ा है, वायलेटेड मतलब नियमों का उल्लंघन करा है. सो व्हेन यू आर वायलेटिंग द रूल्स, ऑफ कोर्स यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, राइट, यू विल बी थ्रैश्ड, यू विल बी स्कोल्डेड. सो यू हैव टू लुक फॉर द सिमिलर वर्ड. ग्लोरीफाई तो नहीं करेगी, ग्लोरीफाई तो किसी की प्रशंसा करना होता है, क्वालिफाई भी नहीं, बॉल्स्टर भी सपोर्ट करना होता है, सरमाउंटेड भी नहीं. सो क्वॉश्ड, क्वॉश्ड मतलब स्कोल्डेड, ठीक है. चलिए, सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ट्राई दिस, ट्राई दिस, अच्छे से देखो क्वेश्चन को. द ओवरवेलमिंग, ओवरवेलिंग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे आप कभी बहुत खुश होते हो तो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप कहते हो ओवरवेल्म्ड हूँ. सिमिलरली अगर आपको बहुत लोग एक्सटेंसिवली सपोर्ट करते तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट, राइट. सो ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड्स नेशन डिलीवर्ड अ स्टिंजिंग रिब्यूक टू द यूनाइटेड स्टेट्स. तो मतलब सबने, अब स्टिंजिंग रिब्यूक इज अ नेगेटिव आइडिया, राइट. तो सबने किसको सपोर्ट मिला है? द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स नेशन डिलीवर्ड, यानी एक नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया यूनाइटेड स्टेट्स को. अब नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों दिया? इट्स डिसीजन टू रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज इजराइल्स कैपिटल एंड इग्नोरिंग प्रेसिडेंट्स बॉम्बास्टिक थ्रेट्स ऑफ रिवेंज. तो इस एक्ट के लिए, यूएसए के इस एक्ट के लिए उन लोगों ने क्या किया है, सारे वर्ल्ड नेशंस ने डिलीवर्ड अ स्टिंजिंग रिब्यूक. स्टिंजिंग रिब्यूक इज सॉर्ट ऑफ अ क्रिटिसिज्म ऑफर्ड टू यूएसए, राइट. तो उसके डिसीजन को क्रिटिसाइज किया गया, दैट मीन्स अ नेगेटिव वर्ड विल कम, तभी तो जस्टिफाई होगा स्टिंजिंग रिब्यूक. तो क्रिटिसाइज कर रहा है यूएसए का डिसीजन. यूएसए का डिसीजन क्या था? उसने जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल रिकॉग्नाइज कर दिया था और प्रेसिडेंट के बॉम्बास्टिक थ्रेट्स ऑफ रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेने को, इग्नोर कर दिया था. तो यूएसए के इस एक्ट को सारे नेशंस ने मिलकर रिजेक्ट किया है, क्रिटिसाइज किया. दैट्स व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से. सो डिनाउंस इज एन एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग, राइट. वैलिडेट तो सपोर्ट करना होता है, नॉमिनेशन मैच नहीं करता. रेवरब्रेटिंग मतलब इको होना, सर्कमस्पेक्टिंग मतलब उसका अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करना. सो दैट्स नॉट व्हाट इज हैपनिंग, दे आर क्रिटिसाइजिंग. सो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लेट्स ट्राई दिस. So in a crucial move targeted at dash black money stashed abroad. तो टारगेटेड एट, तो बेसिकली क्या कोशिश करेंगे, नेगेटिव आइडिया आना चाहिए ना, मतलब यू हैव टू फाइट अगेंस्ट ब्लैक मनी. अब इस अटेम्प्ट के लिए कंट्री ने क्या किया? कंट्री ने एक अग्रीमेंट साइन किया स्विट्जरलैंड के साथ, जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक शेयरिंग ऑफ टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, राइट. सो द एक्ट इज टू stop black money or control black money, right. So you are trying to combat, fight out black money, you want to remove the black money which is stashed abroad. Stashed abroad मतलब बाहर बहुत जमा है लोगों की. So proliferate करना होता है कि proliferation is an act where water proliferated मतलब पास ऑन होना, डाइल्यूट होना. तो प्रोलिफरेशन तो नहीं हो सकता, डिफेंड थोड़ी करेंगे ब्लैक मनी को, उसकी रक्षा थोड़ी करेंगे, उससे लड़ेंगे. सो कम्बैट इज टू फाइट.
ठीक है, एग्रेंडाइज इज इकट्ठा करना, टू ऐड. Convoluted is something which is complex, making it more complex. So what is the right answer? The right answer will be C for this question. ठीक है, चलो let's see the next one now. So see this. A Thai zoo has sparked dashed after a video of staff repeatedly prodding a lion. Prodding मतलब lion को उकसा रहा था कि वो दहाड़े for the tourist. तो ये एक वीडियो वायरल हो गया जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म आया. ऑफ कोर्स मतलब नोटोरियस इज फेमस फॉर अ नेगेटिव रीजन. तो एनिमल टूरिज्म इंडस्ट्री मतलब यू आर अननेसेसरीली ट्रबलिंग एन एनिमल राइट टू जस्ट फॉर प्लेजर. तो इसकी वजह से जू में अगर आप इस तरह का कोई एक्ट कर रहे हो तो लोगों में अगर वो वीडियो वायरल होगा तो लोग कहेंगे तो क्रूअल बिहेवियर शो कर रहे हो राइट. सो स्पार्क्ड एंगर, दैट शुड बी द राइट वर्ड राइट. सो इंडिग्नेशन इज द राइट वर्ड. अब आप देखो इन क्वेश्चंस में लाइक आई सेड राइट इन द बिगनिंग इज जस्ट नॉट नोइंग द वर्ड. ऑफ कोर्स वोकैबुलरी तो आपको आना जरूरी ही है और हमने वीडियोस भी किए हैं हाउ टू बिल्ड वोकैबुलरी. बट ऑल द मोर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैराग्राफ इज ट्राइंग टू कन्वे. तो हम क्या करते हैं कई बार वोकैबुलरी पे फिक्सेट हो जाते हैं या पैराग्राफ को मिस कर जाते हैं. तो ये लापरवाही मत करना. पे अटेंशन टू व्हाट द paragraph is trying to convey in totality. That will help you have a solid grip and you will be able to tackle the questions better. Okay, let's move to the next question now. ट्राई दिस. अच्छे से पैराग्राफ पढ़ो. मतलब बीच में इतना पॉज देने का आइडिया यही है कि जब आप ये लाइक आई टोल्ड यू राइट इन द बिगनिंग कि आप पैरेलली क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्क्रैच पेपर करो, समझने की कोशिश करो एंड take this as a task that you might be doing while you are in the actual exam environment, right? That is the reason I'm giving you adequate time to take a look at the question, read it nicely, explore the answer choices, so utilize it effectively. So the dash of the people of the nation continues despite many years of independence. तो यहाँ पे ट्रांजिशन देखो, डिस्पाइट कई सालों की इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या कंटिन्यू हो रहा है. लेट्स सी. एज आर पॉलिटिशियंस फॉरगेट द ऑल द स्टैटिस्टिकल जगलरी एंड हॉलो स्टेटमेंट्स. मतलब जो तुमने वादे किए थे बड़े बड़े कि नंबर्स में हम ये अचीव कर देंगे, और हॉलो हॉलो मतलब खोखले स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग इलेक्शंस एज सून एज दे टेक ओथ. तो वो अपने इलेक्शन जो उन्होंने प्रोमिस किए थे वो भूल जाते हैं. फॉरगेट, यहाँ पे क्लू क्या था? फॉरगेट. एक तो डिस्पाइट, तो यानी कि इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी क्या लोगों का कंटिन्यू हो रहा होगा. अगर नेता अपने वादे भूल रहे हैं, खोखले वादे कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स द प्लाइट नेगेटिव वर्ड आएगा ना, कि जो त्रासदी है, जो परेशानी है, वो तो कंटिन्यू हो रही है. क्योंकि हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं वो ओथ लेने के बाद पॉलिटिशियंस भूल रहे हैं, राइट. सो बेसिकली एडवर्सिटी, राइट, परेशानी. सो एडवर्सिटी. इम्प्रैक्टिकलिटी तो कुछ है ही नहीं. सिनिकिज्म सनकीपन होता है. इक्वानिमिटी इक्वालिटी होती है, राइट. कामनेस, राइट. जब आप बिल्कुल काम और कंट्रोल्ड हो, बैलेंस्ड हो, तो आप बोलते हो इक्वानिमस हो या इक्वानिमिटी रिफ्लेक्ट कर रहे हो. फेकलेसनेस अगेन एब्सोल्युटली डजंट मेक सेंस. सो ई विल बी द राइट चॉइस. ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So see, with the current news that medical practitioners in America dashed the genes of patients with the Hunter syndrome in what was described as world's first experimental attempt at changing faulty genetic material. तो अगर हम कह रहे हैं कि दुनिया का ऐसा एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे फॉल्टी जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने की कोशिश थी, तो जेनोम एडिटिंग इज फास्ट मूविंग फ्रॉम लैब्स टू क्लिनिक्स एंड कंपनीज. तो यानी कि क्या किया होगा, क्या न्यूज़ आई होगी इफ दिस हैज हैपेंड कि वर्ल्ड का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट था टू चेंज फॉल्टी जेनेटिक मटेरियल. सो व्हाट वाज हैपनिंग टू द जीन्स ऑफ द पेशेंट? दे वर ऑल्टर्ड, दे वर चेंज्ड, राइट. तो आप ये इन्फर कर सकते हो कि भाई हुआ क्या होगा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने चेंज करे जीन्स में. और ये कैसा एक्ट है? ये ऐसा वर्ल्ड का पहला एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट है जहाँ पे फॉल्टी जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने की कोशिश की गई है. तो जो जेनोम एडिटिंग है, विच इज द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स clinics and companies, right? So that means there was some variation or change.
tried to be brought about in genes of human beings, right? So changed, yeah, annotated, that should be the word, right? Jaded is again dull, hampered, रोकना होता है, enhance, better करना होता है, change करें, right? And unadorned, adorned is decorated, unadorned something which is not decorated. So what is the right answer? A. ठीक है? Let's come to the next question, please try this. Embezzlement धोखाधड़ी होता है, चीटिंग करना. अभी तुमको एरोनियस बताया था. सो दिस इज द मैजिक. जब आप वोकैबुलरी सिंसियरली अटेम्प्ट करते हो ना, आप जो वर्ड सीखते जाते हो वो आपको आसपास दिखते जाते हैं. बट कई बार क्या होता है कि हम इतना एफर्ट ही नहीं डालते वोकैबुलरी बिल्डिंग में. दिस इज अ स्किल सेट दैट यू नीड टू अक्वायर विच टेक्स टाइम, विच टेक्स पेशेंस ऑल्सो, राइट? जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये बोल रहा है इट इज इंडीड एरोनियस. एरोनियस मतलब गलत होगा. टू अनाउंस, कहना कि ओनली द सीईओ वाज गिल्टी फॉर एम्बेजलमेंट. तो कह रहे हैं कि तुम अगर सिर्फ गलती बता दोगे सीईओ की कि ओनली सीईओ ही गिल्टी था, यानी दोषी था एम्बेजलमेंट का, धोखाधड़ी का, तो ये गलत होगा. व्हेन, कौन सी सिचुएशन में? जब बाकी सारे कॉलीग्स वर स्मिटन विद मतलब अट्रैक्टेड बाय या ट्रैप्ड बाय ग्रीडीनेस. तो सिर्फ सीईओ की गलती नहीं है, पूरा का पूरा जो कलीग्स थे वो सारे ही लालची थे. तो केवल सीईओ ने धोखाधड़ी नहीं की, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व. This is what the statement is trying to convey. So ravenous is when you are trying to be greedy. तो A choice हम रखते हैं. Immediacy is something which has to be done immediately, जहाँ पे आपको immediate attention ज़रूरत हो. Enviousness is jealousy. Animosity hatred होता है. और bounty होता है abundant, जहाँ पे आपका बहुत सारा है. तो smitten with greed ये एक phrase भी होता है कि तुमको लालच था. तो ravenousness will be the right word. So this is greed, right? इसको हम choose करेंगे. That requires immediate attention. ठीक है. Enviousness is jealousy. Animosity is hatred. बाउंटी इज अबंडेंट, राइट? तो आप देखो आप कितने सारे वर्ड्स भी पैरेलली सीखते जा रहे हो. कुछ मेरा ये भी रीजन था डिफिकल्ट वर्ड्स लाने का कि पैरेलली क्या होगा, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, अप्रोच भी सीख जाओगे, नए वर्ड्स भी इनकाउंटर कर लोगे, यू विल बी एबल टू लर्न न्यू वर्ड्स, राइट? सो वी आर ट्राइंग टू हैव होलिस्टिक अप्रोच व्हाइल वी आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, राइट? सो टेक इट एज अ लर्निंग सेशन, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So there were some instances मतलब situation या examples, right? In the actor's autobiography which were astonishing. तो कुछ ऐसी autobiography में कुछ ऐसे एरियाज थे, एक्सर्प्ट थे जो सरप्राइजिंग थे, नए थे, लोगों को पता नहीं था, राइट? तभी तो आप सरप्राइज हो गए व्हेन यू डू नॉट नो. फॉर द ऑडियंस हाउएवर, फिर नेगेटिव ट्रांजिशन आ गया. तो कुछ तो ऐसे थे जो नहीं पता थे. हिज मेजर रेवल्यूशंस मतलब जो उसने ओपन अप किया, जो उसने इंफॉर्मेशन कन्वे करी, वर डैश इनफ मतलब दीज वर नोन इनफ, राइट? आप ये कह सकते हैं. तभी तो हाउएवर आएगा कि कुछ तो एलिमेंट्स ऐसे थे जो ऑटोबायोग्राफी में लिखे एक्टर ने, तो लोग बड़े सरप्राइज हुए. पर बहुत कुछ ऐसा था जो लोग जानते थे. जो रेवल्यूशंस मतलब जो उसने लिखा, जो शो किया, जो ओपन अप किया, that people knew, people were aware of, right? So invigorating तो हो नहीं सकता, crucial है नहीं बोल सकते. thorough is detailed, again doesn't make sense. thorough और detailed तो एक reason की वजह से ही eliminate हो गए. conversant मतलब people knew about it, people were aware about it, right? So the correct answer to this question will be choice D. Now let's come to the next question. So the eminent मतलब प्रख्यात, famous painter M.F. Hussain painted with inconceivable dash as much as almost all his creations were characterized by spectacular मतलब शानदार, आर्टिस्ट्री मतलब इतना शानदार स्किल सेट था. जो भी वो पेंटिंग करते थे वो उम्दा होती थी. दैट वाज द बेस्ट,
राइट, सो दैट्स व्हाट यू कैन से। तो वो कैसे पेंट करते होंगे, वो पेंट करते होंगे इन सिंसियरिटी से, राइट, बहुत प्रतिबद्ध होके, राइट, कमिटेड होके, सिंसियर होके। सो इनकंसीवेबल सिंसियरिटी, मतलब इतनी सिंसियरिटी कि जिसको आप नाप नहीं सकते, right? So virtuosity is sincerity, we'll keep this. Penuriousness though is considered with money, right? Pugnacity, surrealism. Brevity is quick, so that doesn't match. So what will be the right answer? A. Okay, let's come to the next question. Please try this. So Sai Praneeth seems like a dash Telugu boy, but so transition को देखो तो the ideas will be opposite. When wielding the racket, मतलब while he is playing, the fellow can inflict मतलब cause serious damage. That means there he is very attacking. तो wielding the racket मतलब whenever he is playing कोई racket का associated game, it could be tennis or it could be badminton, but here he is very attacking, right? तो आपको ट्रांजिशन बट है, तो यानी कि पहले वो आपको दिखता शांत होगा पर जब खेलता है तो बहुत अटैकिंग है, राइट? सो ही मस्ट बी लाइक लाइक वेरी शाय टाइप फेलो, राइट? तो शाय वर्ड मैच करता है यहाँ पे। वो दिखता तो ऐसा चुपचाप सा है या सहमा हुआ सा या शाय या इंट्रोवर्ट, पर जब फील्ड पे आता है तो एब्सोल्युटली अटैकिंग मोड में होता है। तो ब्रैश तो रूड होता है, हमें तो रैशनेस या डैमेज तो वो फील्ड पे कर रहा है। तो आपको एक वर्ड चाहिए वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है। कॉय मैचेस अगेन कन्फाइवल, डिफिडेंट और डॉगमैटिक, तो अप्रोच में ही नहीं मैच करता। सो बी विल बी द राइट आंसर कि प्रणीत शाय दिखते हैं पर जब वो फील्ड पे होते हैं, खेल रहे होते हैं, रैकेट से अटैक करते हैं तो बहुत ही बढ़िया गेम खेलते हैं। ही कैन कॉज सीरियस डैमेज, मतलब ही प्लेज इन अ वेरी अटैकिंग वे। ठीक है, सो दैट इज the reason we will pick B as an answer, which means shy. ठीक है, चलो, so now what we are doing, I am giving you 2 questions as your homework. So हमारा आज 50 questions का टारगेट था, हाफ सेंचुरी हमने कंप्लीट कर लिए। अब ये 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स देखेंगे, ढूंढेंगे, कॉन्टेक्स्ट समझेंगे और लगे रहेंगे, राइट? एग्जाम में, लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत पे ऑफ करती है। कई बार आपको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखता, बट जब आप आगे जाते हो और पीछे मुड़ के तो देखते हो तो आपको लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा है, राइट? यू हैव रियली ट्रैवल्ड सो फार। सो ऑलवेज विद हाई होप, विद बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट्स, keep working hard, keep striving, stay consistent, right? I wish you all the best. अगर आपने कोई टॉपिक की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, अपने ओलेट से पहले, जो भी आप ओलेट का एग्जाम दे रहे हो, राइट, आप एक बार वो वीडियो सिंसियरली नेविगेट कर लो, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। यू विल बी एबल टू टैकल द इंग्लिश क्वेश्चंस इन अ बेटर वे। So I wish you all the best. Vijay Bhav, take good care of yourself and give your 100%. Bye bye.